Hello students. So I think till now we are seeing just how we can coagulate our colloidal particles. Okay. So the next method is that by addition of by addition of electrolytes. By addition of electrolytes. Okay. So now what exactly do you mean by addition of electrolytes? So suppose let me consider one example. With the help of example only, I will explain. If here it's a, suppose here it's a FUH thrice is there, okay. So here this one is a colloidal particles of FUH thrice. Okay, so each has like a positively charged because we are knowing that it's like a Fe2O3 into XH2 and they have absorbed Fe plus 3. So what I'm saying, here they all are like a plus charge, okay. Now what will happen? Now due to that plus charge, repulsion will be there. Now due to that plus charge, a repulsion will be there. And due to that repulsion, what I can say, and due to that repulsion, what will happen? They are stable in nature. Okay, but now what I just want to do, I will just add some electrolytes into it. Now the colloidal particles are very stable in nature. बहुत ही सही है, कोई दिक्कत नहीं है, but you just want to coagulate them. आप ये चाहते हो कि उसकी स्टेबिलिटी चेक करना चाहते हो, या फिर आप ये चाहते हो कि ये सभी के सभी जो पार्टिकल्स हैं उनको इकट्ठा करना चाहते हो. आप ज्यादा अमाउंट में कोई भी इलेक्ट्रोलाइट डाल दे. सपोज मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ NaCl. सो नाउ व्हाट विल हैपन? ओके, सो मुझे पता है कि FUH थ्राइस है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, इन सभी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है. व्हाट विल हैपन नाउ? your particles will absorb or will attract ions having opposite charge. Now what will happen? These positively charged colloid particles will attract Cl minus on their surface, and due to that, now what will happen? That Cl minus will neutralize that Fe plus 3. So basically now what happened here? Suppose it's a plus 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 plus, but now you are adding NaCl. So now your particle will absorb Cl minus. So now what will happen? Just think about it. Now this particle will become neutral. तो ये सभी अभी कैसे हो गए? Neutral. So finally now what will happen? That neutral particles will come together and they will have van der Waals force, and due to that van der Waals force, they will form aggregates. Okay, and that one will settle down and precipitate out. So in electrolyte, which ion is responsible for the coagulation of colloidal system? So I can say here this Cl minus, like ion having a opposite charge to that of colloidal particles. colloidal के particles के ऊपर जो भी चार्ज है उससे जो अपोजिट चार्ज है, ठीक है बच्चों, वही है रिस्पॉन्सिबल इनकी कोगुलेशन के लिए. यहाँ पे हम जब एक्सेस अमाउंट में डालेंगे, ओके, देखो मैं आपको एक बात बता दूं, हम जब इसको एक्सेस अमाउंट में डालेंगे ना, तभी क्या होने वाला है? एक्सेस अमाउंट जब डालेंगे तभी ये कोगुलेशन होने वाला है. कोई भी कॉलोइडल है, सो स्मॉल अमाउंट जो होती है, स्मॉल अमाउंट इज नेसेसरी, small amount is required for the stability. आप थोड़ा सा समझो कि अगर यहाँ पे स्मॉल अमाउंट है तब तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि जो स्मॉल अमाउंट होती है वो तो प्रेसिपिटेट को क्या रखती है बच्चों? अच्छे से स्टेबल रखती है. लेकिन अगर आपने एक्सेस अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया तो उस इलेक्ट्रोलाइट में से ऐसा आयन कि जिसका चार्ज उस पार्टिकल के अपोजिट है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो उससे आपका पार्टिकल क्या हो जाएगा? न्यूट्रलाइज हो जाएगा.
पर इससे ये जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे के नजदीक आएंगे, और जैसे ही वो एक दूसरे के नजदीक आएंगे वो कॉग्युलेट होंगे और प्रेसिपिटेट डाउन हो जाएंगे। सपोज इसी तरह मैं अपोजिट आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज मैं आपको एक बढ़िया सा एग्जांपल देना चाहूंगा। ओके, सपोज आई हैव like colloidal particles and colloidals also. Colloidals also AH2S3. I have colloidal solution of AH2S3. So it's a negatively charged particles. As you are knowing that they all are negatively charged particles. But now if you are adding, suppose if you are adding, I can say CSO4. Okay, not CSO4. Let me put like MgCl2, or I can say KCl. Now what will happen when you will pour it into the excess amount? Now what will happen? Just tell me. Now just tell me what will happen. Okay. So now this K plus will be absorbed. Now this K plus will be absorbed on that surface of particle. And this K plus will be responsible for the aggregation of this colloidal system. आ रही है बात समझ में आपको? हार्डी एंड शुल्स नाम के दो साइंटिस्ट थे। Schulz. Okay, these scientists have done experiment of coagulation. Okay, according to them, they have noted down 2 points, like opposite charged ion of electrolyte is responsible for the coagulation. Next one, second point is that Hardy and Schulz, opposite charge ion of electrolyte is responsible for the coagulation. And second thing is that I can say that like coagulation will depends as the charge of ion is more. Charge of ion is proportional to the coagulation power. मीन्स जिसके ऊपर ज्यादा चार्ज है वो इजीली इसको क्या कर पाएगा, कोगुलेट कर पाएगा। सपोज मेरे पास KCl है और मेरे पास CaCl2 है, तो यहाँ पे कौन सा इसमें से Ca+2 आएगा और Cl- आएगा। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ तो नेगेटिवली चार्ज ही है। अगर आपको नहीं समझ में आ रही है बात तो मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझाना चाहूंगा बच्चों, बहुत ही सही तरीके से। लिसन, आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझनी है एक बात, आप थोड़ा सा समझ लो, बात आपकी कंप्लीटली हो जाएगी। ओके ओके, कंप्लीटली आपकी जो है वो बेसिक फंडा जो है वो क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा समझना। सपोज मेरे पास यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज आर्सेनिक सल्फाइड है, AH2S3 है, और वो कैसा होता है, उसका पार्टिकल कैसा होता है बच्चों, नेगेटिवली चार्ज। यहाँ पे थोड़ा बहुत ड्रॉ कर देता हूँ। अब मुझे इसका कोगुलेशन करवाना है। सपोज आई हैव 3 ऑप्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव NaCl, MgCl2 and AlCl3. I have 3 option. Okay, MgCl2, NaCl, MgCl2 and AlCl3. So I am knowing that here positive charge ion, I can say cation, is responsible for the precipitation of this colloidal salt. यहाँ से Na प्लस इसको क्या करेगा, कोगुलेट। यहाँ से कौन कर सकता है, Mg+2 and Al+3। तो यहाँ पे जिस केटायन के पास चार्ज ज्यादा है वो क्या करेगा, बहुत ही इजीली क्या कर देगा, कोगुलेशन कर देगा। और ये जो है वो लेस अमाउंट में चाहिए, आप थोड़ा सा डालोगे तब भी ये क्या कर देगा, इसको प्रेसिपिटेट कर देगा। और ये जो है वो हमें कैसा अमाउंट में चाहिए,
मोर अमाउंट में चाहिए। तो यहाँ पे मैं एक काम कर सकता हूँ कि अगर मुझे AS2S3 का, समझो आप, मुझे AS2S3 का क्या करना है बच्चों, कैलकुलेशन करवाना है, फ्लक्चुएशन करवाना है, तो आई कैन से दैट फ्लक्चुएटिंग पावर जो है वो किसकी ज्यादा है बच्चों, फ्लक्चुएटिंग पावर जो है वो किसकी ज्यादा होगी, तो सबसे ज्यादा पावर जो है वो किसके पास होगी, Al+3, उसके बाद Mg+2, और सबसे कम पावर किसकी होगी, Na+ की होगी। ओके, अमाउंट किसकी ज्यादा चाहिए, ओके मैं आपको बात बता दूं। अब हम बात करने वाले एक प्रेसिपिटेशन वैल्यू की बात करने वाले, किसकी बात करने वाले हैं, प्रेसिपिटेशन वैल्यू की बात करने वाले, फ्लक्चुएटिंग वैल्यू। ये हो गया फ्लक्चुएटिंग पावर के बारे में। सपोज मैं आपको एक दूसरी चीज बताना चाहूंगा, डोंट वरी, हाँ, जस्ट वेट एंड वॉच। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, मजा आएगा, बहुत सही मजा आएगा, देखना। अब आप किसको मत बताना ये बात कि इफ यू हैव लाइक सॉल्व, आपके पास एक सॉल्व है, एंड दैट वन इज एंड दैट वन इज एंड दैट वन इज positively charged, that one is suppose positively charged, I can say it's like a AlOH thrice salt, that one is positively charged. What I just want to precipitate it out. So I have lots of electrolytes. Okay, I have lots of electrolytes. I can say I have some electrolytes like NaCl, MgSO4, and that I can say aluminum phosphate, AlPO4. Okay, so now your colloidal charge is positively charged. आपका ये जो colloidal particle है वो कैसा है बच्चों, positively charged है. So which ion is responsible for the coagulation according to the Hardy and Schulze? Negatively charged ion are, तो यहाँ पे जो है मैं आपको बता दूं, Cl माइनस, यहाँ से SO4-2, एंड अगर ये आप इलेक्ट्रोलाइट ले लो तो PO4-3, दिस थ्री आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोगुलेशन। तो मैं बात करूंगा पावर किसके पास सबसे ज्यादा होगा, इसका ये जो है वो लेस अमाउंट में चाहिए। अगर इसके पास तो बहुत ही ज्यादा है, -3 है, थोड़ा सा डालेंगे तो इसको न्यूट्रलाइज कर देंगे, ये लेस अमाउंट में चाहिए। लेकिन हाँ, अगर मैं बात करूं फ्लक्चुएटिंग पावर की, तो वो किसके पास ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा होगा PO4-3, फिर होगा SO4-2, फिर होगा Cl-। तो आपके जेई और नीट में बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो इस फंडामेंटल से पूछे गए हुए हैं। आपके जो बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो इसी फंडामेंटल से पूछे गए हुए हैं। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ वैल्यू की। ये अमाउंट जो है वो कम चाहिए, ये अमाउंट ज्यादा चाहिए, तो ये क्या होती है, इसको हम लोग बोल सकते हैं प्रेसिपिटेशन वैल्यू, या फिर हम इसको बोलेंगे कोगुलेशन वैल्यू। ये क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन वैल्यू एंड कोगुलेशन वैल्यू। तो मैं क्या कर रहा हूं, मेरे पास 1 लीटर एक सॉल है, मैं एक बहुत ही बढ़िया सा एग्जांपल आपको दे रहा हूं। सपोज आई हैव अ सॉल, I have 1 liter salt. Okay, okay, yes or no? Suppose XYZ salt is there. I am using electrolyte. Suppose यही ले लेते हैं ना, AlOH thrice है सॉल्ट के फॉर्म में। आई जस्ट वॉन्ट टू कोगुलेट दिस सॉल्ट, मैं इस सॉल्ट को क्या करना चाहता हूँ, कोगुलेट करना चाहता हूँ। सो विद इन अ 2 आवर, तो प्रेसिपिटेशन वैल्यू किसको बोलते हैं, द मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ द मिनिमम concentration of an electrolyte in millimole per liter
requires to precipitate your solution. आपका ये जो सॉल है उसको मुझे क्या करना है, प्रेसिपिटेट करना है. सपोज मुझे NaCl चाहिए और वो NaCl चाहिए सपोज 15 मिलीमोल NaCl चाहिए. सो द मिनिमम अमाउंट, कम से कम इतना तो डालना ही पड़ेगा, तब जाके 2 आवर में क्या हो जाएगा, कंप्लीटली क्या हो जाएगा, कोगुलेट हो जाएगा. सो द मिनिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज रिक्वायर्ड, the minimum amount of millimoles per liter requires to precipitate out your salt completely. So that amount is known as a coagulating value. अभी यहाँ पे NaCl के हम लोग एग्जांपल दे रहे हैं, तो NaCl की coagulating value कितनी होती है, 15 मिलीमोल, मीन्स 15 हुई. नहीं समझ में आई सर बात, कोई बात नहीं है, टेंशन मतलब एक बार और समझाता हूँ मैं. हम बात कर रहे हैं बच्चों कोगुलेटिंग वैल्यू की बात कर रहे हैं. हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, कोगुलेटिंग वैल्यू की बात कर रहे हैं. अब थोड़ा सा समझना अच्छे से. मैंने यहाँ पे 1 लीटर क्या ले रखा है, यहाँ पे मैंने 1 लीटर जो है वो मेरा सॉल है. आई हैव 1 लीटर सॉल. ओके, आई जस्ट वांट टू प्रेसिपिटेट आउट कंप्लीटली within a 2 hour, I can say within a 2 hour I want complete precipitation of salt. So for that I will add some electrolyte, suppose XYZ. अगर आपको XYZ नहीं पसंद आ रहा आप NaCl ले सकते हो. So the minimum amount of electrolyte, मैं XYZ थोड़ा सा ऐड करूंगा. सपोज मैंने 5 मिलीमोल पर लीटर मैंने क्या किया, ऐड कर दिया. बट ये तो लीटर है ही, तो हम यहाँ पे बोलते मैंने 5 मिलीमोल ऐड किया, बट उससे प्रेसिपिटेशन नहीं हुआ. मैंने 10 मिलीमोल पर लीटर ऐड किया, प्रेसिपिटेशन नहीं हुआ. 14 मिलीमोल ऐड किया, प्रेसिपिटेशन नहीं हुआ. लेकिन जब 15 मिलीमोल डाला तो विद इन 2 आवर कंप्लीट प्रेसिपिटेशन हो गया. तो ये जो है 15, दैट वन इज अ प्रेसिपिटेटिंग वैल्यू ऑफ दिस इलेक्ट्रोलाइट. आप समझ सकते हो. और दूसरी बात, coagulation value, I can say coagulation value, okay, is coagulating value जो रहती है बच्चों is inversely proportional to the coagulation power, और दूसरा बोल सकते हैं फ्लक्चुएशन पावर. अच्छे से समझाने की ट्राई कर रहा हूँ एक बार और. अगर आपको समझ में नहीं आ रही है आप वीडियो 2-3 बार देखना, ठीक है. इतना इजी भी नहीं है कि आपको एक ही बार में आ जाए. ओके, तो आप थोड़ा सा ये सोचो. यहाँ पे बहुत ही मस्त है. मेरे पास आई हैव, अब आप थोड़ा सा समझ सकते हो, ओके, कि जैसे यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज है कॉलोइडल, AS2S3 है. मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ एज अ फ्लक्चुएटिंग जो है NaCl, MgCl2 एंड AlCl3 में यूज कर रहा हूँ. तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कोगुलेशन पावर जो है वो किसका सबसे ज्यादा होगा, Al+3, देन Mg+2, then Na+. Okay, but whenever I am just talking about coagulating value, at that time what I can say here, ये जो है इसका पावर बहुत ही ज्यादा है, तो आप कम अमाउंट में डालोगे, स्मॉल अमाउंट में डालोगे तब भी दिक्कत नहीं है, जबकि ये आपको मोर अमाउंट में डालना पड़ेगा. सो कोगुलेटिंग वैल्यू किसकी ज्यादा होगी, Na+ की, Mg+2 की, और यहाँ पे Al+3 जो है सबसे कम अमाउंट में चाहिए. तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कोगुलेटिंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कोगुलेटिंग वैल्यू. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. सपोज आई हैव अनदर सॉल्ट and that one is like positively charged colloidal particles. Okay, that one is like positively charged colloid I have. So suppose it's a Al2O3, okay,
Al2 फिर क्या आएगा बच्चों यहाँ पे O3 है इंटू XH2, ये पॉजिटिवली चार्ज है। इसके लिए सपोज हमारे पास 3 आयन है, तो आयन की आपको बात करो तो दैट वन इज लाइक Cl minus, SO4 minus 2 and PO4 minus 3. So whenever I am talking about coagulation power, at that time it's सबसे ज़्यादा जो पावर है वो किसके पास होगा, PO4 minus 3 के पास, कम होगा SO4 minus 2 and Cl minus. But whenever I'm just talking about coagulating value, at that time what I can say, Cl minus सबसे ज़्यादा, SO4 minus 2, and what will happen, PO4 minus 3. So this one is all about Hardy and Schulz law. MCQ में बहुत ये पूछा जाता है, JEE नीट के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम जो हमारा चैप्टर कंटिन्यू करेंगे, जैसे ही खत्म होंगे प्रीवियस सर के जो JEE नीट क्वेश्चंस है, जो इंपॉर्टेंट शीट से हम सॉल्व करेंगे। चलो थैंक यू वेरी मच, ठीक है। Okay, we will follow the timetable as per given Rohit sir. Okay, thank you very much.